लो Cl माइनस और Br माइनस का एक सोल्यूशन है और इसमें हम लोग Ag प्लस अगर स्लोली ऐड कर रहे हैं, KSP दे रखा है, KSP ऑफ AgCl गिवन है, KSP ऑफ AgBr भी हमें गिवन है, मान लो ये अल्फा वैल्यू ये बीटा वैल्यू मान लो दिया हुआ है। और अगर हम धीरे धीरे Ag प्लस अगर सोल्यूशन में अगर बढ़ाएंगे तो कौन पहले प्रेसिपिटेट करेगा, AgCl के AgBr ये डिसाइड करना है। तो ठीक है, प्रेसिपिटेट तो तब बनता है जबकि सोल्यूशन उस आयन के प्रति सैचुरेट हो जाए। KSP ऑफ AgCl किसके बराबर होगा, Ag प्लस का कंसेंट्रेशन और Cl माइनस के कंसेंट्रेशन, ये होगा Ag प्लस के कंसेंट्रेशन और Br माइनस के कंसेंट्रेशन। तो जिस वक्त ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए तो बोलेंगे AgCl के रेस्पेक्ट में सैचुरेट हो गया, अब AgCl का प्रेसिपिटेट बनने वाला है। या जिस वक्त ये वैल्यू बीटा का बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे AgBr के प्रति सैचुरेट हो गया, AgBr प्रेसिपिटेट होने वाला है। तो क्या करोगे, दोनों के लिए Ag प्लस का रिक्वायरमेंट निकाल लो। Ag प्लस का कंसेंट्रेशन पहले के लिए कितना चाहिए, अल्फा अपॉन Ag प्लस दूसरे के लिए कितना चाहिए सैचुरेशन के लिए, बीटा अपॉन Cl माइनस। अब इन दोनों Ag प्लस को कंपेयर, अब इन दोनों Ag प्लस को आप कंपेयर कीजिए कौन छोटा है, क्योंकि हम लोग तो स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं कंसेंट्रेशन, जो छोटा होगा वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। ऐसा हम बता दिए थे क्लास में कंडीशन। सवाल लिखिए, थियरी तो हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, सवाल लिखिए। हाँ प्रेसिपिटेशन इंस्टेंटेनियसली होगी ना, समझ जैसे अगर एक बार AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, हाँ उसके बाद हम और Ag प्लस डाल सकते हैं, बिल्कुल। AgBr का बनाते हैं। जब प्रेसिपिटेशन AgCl का चल रहा है और आप Ag प्लस डालते चले जा रहे हो तो Ag प्लस जो जा रहा है वो दो काम कर रहा है, कुछ जा रहा है प्रेसिपिटेट बन रहा है और कुछ Ag प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा भी रहा है सोल्यूशन में। मतलब इंस्टेंटेनियसली हो गया बिल्कुल जैसे हम Ag प्लस डाला वैसे बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ गया। 100% प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। सवाल लिखिए। The solubility of PbOH whole twice, the solubility of PbOH whole twice in water, the solubility of PbOH whole twice in water is 6.7 into 10 to the power minus 6. The solubility of PbOH whole twice in water is 6.7 into 10 to the power minus 6 molar. Calculate its solubility in a buffer of pH is equal to 8. Calculate its solubility in a buffer of pH is equal to 8. Calculate its solubility in a buffer of pH is equal to 8. Calculate the next question. Calculate the F minus concentration in a solution. Calculate the F minus concentration in a solution which is saturated with respect to MgF2 solid and SrF2 solid, which is saturated with respect to MgF2 solid and SrF2 solid. KSP of MgF2 is 10 to the power minus 10.
sorry, KSP of MgF2 is 10 to the power minus 8. MgF2 का 10 to the power minus 8 and KSP of SRF2 is 4 into 10 to the power minus 9. 4 into 10 to the power minus 9. ये हो गया दूसरा सवाल. Calculate the solubility of PbI2 in water. Calculate the solubility of PbI2 solid in water. PbI2 solid in water, which is 90% dissociated. Which is 90% dissociated. KSP of PbI2. KSP of PbI2. 1.4 into 10 to the power minus 8. 1.4 into 10 to the power minus 8. अगला सवाल. A solution is 0.01 molar with respect to Ag plus. A solution is 0.01 molar with respect to Ag plus and 0.01 molar Ba2 plus and 0.01 molar Ba2 plus, full stop. Solid K2CrO4 is added slowly. Solid K2CrO4 is added slowly. Solid K2CrO4 is added slowly. Which ion will precipitate first? Which ion will precipitate first? And what will be the concentration of the first ion? And what will be the concentration of the first ion when the second starts precipitating? And what will be the concentration of the first ion when the second starts precipitating? KSP Ag2CrO4 का, KSP Ag2CrO4 solid का 1.1 into 10 to the power minus 12 and KSP BaCrO4 का दे रखा है 2.2 into 10 to the power minus 10. अगला सवाल. What is the maximum possible Ag plus concentration? What is the maximum possible Ag plus concentration in a saturated solution of H2S? What is the maximum possible concentration? Ag plus concentration. What is the maximum possible Ag plus concentration in a saturated solution of H2S? From which the precipitation of Ag2S, from which the precipitation of Ag2S is just prevented. From which the precipitation of Ag2S is just prevented. KSP Ag2S का 1.6 into 10 to the power minus 49. 1.6 into 10 to the power minus 49. ये कोई नंबर है लेकिन आंसर लिखना पड़ता है. K1 of H2S 10 to the power minus 7 and K2 for H2S 10 to the power minus 14. K1 10 to the power minus 7, K2 10 to the power minus 14. और आप लोग अच्छी तरह पता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 0.1 मोलर.
तो H2S का कंसेंट्रेशन हो गया 0.1 मोलर। H2S का कंसेंट्रेशन इज 0.1 मोलर। अगला सवाल, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस। छोड़ दो, सेम टाइप का सवाल है। हाँ, अगला सवाल, अ सोल्यूशन हैज 0.05 मोलर Mg2 प्लस। A solution has 0.05 molar Mg2 plus and 0.05 molar ammonia and 0.05 molar ammonia. Full stop. Calculate the concentration of NH4Cl required. Calculate the concentration of NH4Cl required to just prevent the formation of. Calculate the concentration of NH4Cl required to just prevent the formation of MgOH whole twice solid. To just prevent the formation of MgOH whole twice solid. KSP is equal to 9 into 10 to the power minus 12. KSP is equal to 9 into 10 to the power minus 12, and KB for ammonia is 1.8 into 10 to the power minus 5. 1.8 into 10 to the power minus 5. 1.8 into 10 to the power minus 5. दो सवाल और देंगे। अगला सवाल, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इन अ बफर ऑफ pH is equal to 3. Calculate the solubility of CaF2 in a buffer of pH is equal to 3. Calculate the solubility of CaF2 in a buffer of pH is equal to 3. Given KSP of CaF2, given KSP of CaF2 5.3 into 10 to the power minus 9. 5.3 into 10 to the power minus 9, and Ka for HF, and Ka for HF 6.7 into 10 to the power minus 4. Ka for HF 6.7 into 10 to the power minus 4. अगला सवाल, calculate the maximum quantity of ammonia which must be added. Calculate the maximum quantity of ammonia which must be added. Calculate the maximum quantity of ammonia which must be added to 1 liter of solution, to 1 liter of solution, to 1 liter of solution in order to dissolve, in order to dissolve 0.1 mole of AgCl, 0.1 mole of AgCl, forming AgNH3 whole twice positive, forming AgNH3 whole twice positive, AgNH3 whole twice positive. KSP of AgCl is equal to, KSP of AgCl is equal to 10 to the power minus 9, and Kf of AgNH3 का whole twice positive 10 to the power 8. कितने सवाल हो गए? 8।
काफी है, सॉल्व करो। हर सवाल को अटेम्प्ट करो, सारे इक्वेशंस लिखो, फाइनल आंसर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया है जिस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स मिले। केसेस बना बना के आप लोगों को बताया गया है, बफर में कैसे निकाला जाता है, कॉमन आयन में कैसे निकाला जाएगा, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, प्रिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी, प्रिफरेंशियल प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन उसी को कहते हैं। पहला सवाल क्या है बेटा? Calculate the solubility of PbOH whole twice in water is 6.7 into 10 to the power minus 6. Then calculate the solubility of the same solid in a buffer of pH is equal to 8. कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे ये पहला? तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी दे रखा है उसके मदद से हम लोग KSP निकाल लेंगे। KSP निकालने के लिए पहले तो हम लोग को प्रोसेस लिखना पड़ेगा। PbOH का होल ट्वाइस सॉलिड ये ब्रेक करेगा Pb2 प्लस 2OH माइनस में। मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो यहाँ S आएगा, यहाँ 2S आएगा। सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे रखा है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, S का वैल्यू दे रखा है। KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? Pb2 प्लस इंटू OH माइनस का स्क्वायर, मतलब S इंटू 2S का होल स्क्वायर, दैट इज 4S क्यूब। ये KSP आएगा। दैट मीन्स 4 इंटू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल क्यूब, KSP निकल गया। KSP निकल गया, और एक बार KSP कैलकुलेट हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, है ना। अब वही सॉलिड को अगर हम लोग एक बफर में ले रहे हैं, टेकन इन अ बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 8, देन व्हाट विल बी द न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड? फिर से हम लोग लिखेंगे PbOH का होल ट्वाइस सॉलिड विल ब्रेक एज Pb2 प्लस 2OH माइनस। बफर में क्या तरीका बताए थे? लेट द सॉल्युबिलिटी इज S प्राइम। नाउ solubility can change, but solubility product always remains constant. Let the new solubility is S prime. यहां लिखे S prime। यहां पर चूंकि ये बफर pH 8 वाला था तो POH कितना? 6, OH माइनस कितना? 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 OH माइनस पहले से ही है। S आया, क्या यहां 2S जोड़े? समझ में आ रहा है ना? बफर अपना pH को हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करता है, चाहे उसमें कुछ भी मिला दो। अगर डेल्टा क्वांटिटी से मिला रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला pH या POH को, तो यहां पे 2S मत जोड़ देना, अभी भी OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 ही रहेगा। देयरफॉर KSP विल बी इक्वल टू Pb2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय OH का स्क्वायर। क्लियर? दैट विल बी इक्वल टू KSP 4 इंटू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल थ्राइस। सॉल्व करके S प्राइम निकालेंगे, आंसर S प्राइम ही नया सॉल्युबिलिटी होगा PbOH होल ट्वाइस का। समझ में आया? वाटर में सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है KSP निकालने के लिए, और वही KSP का हेल्प लेके आप बफर में सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। पहला सवाल क्लियर है? दूसरा सवाल, calculate the F minus concentration of solution which is saturated with MgF2 and SrF2। ये कौन सा केस हो गया? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी।
अगले क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आइएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट। वैसे 1 करने के बाद 2 भी कर सकते हो। 2 में ज्यादा है, ज्यादा 15 सवाल है। 20 सवाल है क्या? ठीक है, पहले 1 तो करो। कैलकुलेट द F माइनस कॉन्सेंट्रेशन विच इज सैचुरेटेड विथ MgF2 एंड SrF2 सॉलिड, और दोनों का KSP दे रखा है। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। तो MgF2 का सॉलिड विल ब्रेक एज Mg2 प्लस 2F माइनस। SrF2 भी ब्रेक करेगा Sr2 प्लस 2F माइनस। इसका KSP 1 दे रखा है, इसका KSP 2 दे रखा है, और F माइनस का कंसेंट्रेशन पूछा जा रहा है। क्लियर? मान लेते हैं इसका सॉल्बिलिटी S1, इसका सॉल्बिलिटी S2। इक्विलिब्रियम पे अगर ये S1 तो ये S1 2S1, ये S2 है तो ये भी S2 2S2। टोटल F माइनस कितना हो जाएगा? 2S1 प्लस 2S2, 2S1 प्लस 2S2। KSP1 किसके बराबर? Mg2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर, मतलब 2S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर। सिमिलरली KSP2 विल बी इक्वल टू SR2 प्लस 2S1 प्लस 2S2 का स्क्वायर, SR2 प्लस इंटू F माइनस का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए, 2 यहां से कॉमन ले ले, 4 आएगा बाहर। अगर दोनों को जोड़ दिया गया तो KSP1 प्लस KSP2 विल बी इक्वल टू 4 इंटू S1 प्लस S2 का होल क्यूब। आएगा? तो S1 प्लस S2 निकल जाएगा, दैट इज KSP1 प्लस KSP2 डिवाइडेड बाई 4 होल टू द पावर 1/3। और उसके बाद फाइनल आंसर क्या होगा? F माइनस इज 2S1 प्लस 2S2। तो S1 प्लस S2 जो निकालो उसमें 2 टाइम्स 2 इंटू KSP1 प्लस KSP2 होल डिवाइड बाई 4 टू द पावर, यही आंसर है। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल में जाने के पहले एक चीज देखो। पहले इधर अगर कोई सॉलिड AXBY है, नो डाउट ये ब्रेक करता है X ऑफ AY प्लस Y ऑफ B अकॉर्डिंग टू इट्स KSP। हम लोग कहते हैं लेट द सॉलिबिलिटी इज S, लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इज S। तो ध्यान रखना कि पहले वो सॉलिड का S पार्ट बनता है AXBY एक्वस। कितना पार्ट? अगर सॉलिबिलिटी S बोल रहे हो तो उस सॉलिड का S मोल्स पर लीटर AXBY एक्वस बनता है, माने वो डिसॉल्व कर गया। और उसके बाद अगर इसका अल्फा 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, 1, तो ये ब्रेक कर जाएगा X ऑफ S Y ऑफ S, क्योंकि अल्फा 1 है। 1 मोल X मोल देगा, Y मोल देगा, 100% ब्रेक करके। तो जो हम लोग लिखते हैं ना सॉलिबिलिटी S, XS, YS, ये मानकर लिखते हैं जब उसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। लेकिन अगर यहां पर कुछ वैल्यू दे रखा है अल्फा, है कि नहीं, इसमें से कितना जाएगा? S अल्फा लिखोगे ना, S इंटू 1 माइनस अल्फा, तो S माइनस S अल्फा कितना गया? S अल्फा गया। तो S अल्फा जाएगा
तो x टाइम्स s अल्फा, y टाइम्स, इफ अल्फा इज 1 तो अल्फा 1 बिठा ले जनरल एक्सप्रेशन, इफ अल्फा इज 0.9 तो 0.9 लगा देंगे। कॉपी कर लो ये पहले। जब अल्फा के बारे में कुछ नहीं गिवन होता है, हम लोग हमेशा अल्फा को 1 मानकर ही सॉल्बिलिटी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेकिन अगले सवाल में 90% दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर विच इज 90% डिसोसिएटेड, KSP दे रखा है। PbI2 सॉलिड वाटर में Pb2 प्लस 2I माइनस KSP is given 1.4 into 10 to the power minus 8. What will be the solubility if it is 90% dissociated? तो कैसे लिखेंगे? Let the solubility of the PbI2 is S. आगे क्या लिखे? S और 2S लिखे? समझ में आ रहा है? यहां लिखेंगे 0.9S और यहां लिखेंगे 1.8S। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये सबसे पहले बना होगा PbI2 एक्वस S, लेकिन अल्फा कितना दे रखा है? 0.9। तो यहां से कितना गया? 0.9S गया। 0.9S इसका 0.9S देगा और इसका क्लियर। अब हम लोग KSP का इस्तेमाल करेंगे। 1.4 into 10 to the power minus 8 KSP विल बी Pb2 प्लस का कंसेंट्रेशन 0.9S मल्टीप्लाइड बाय I माइनस का स्क्वायर 1.8S का होल स्क्वायर। सॉल्व करके S निकालेंगे, दैट इज द आंसर। क्लियर? हाँ, PbI2 0.1S बचा एक्वस, 0.1S बचा। PbI2 एक्वस, हाँ 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 हाँ, उसको भी इक्विलिब्रियम में नहीं लिखेंगे सर? किसमें? तो KSP के सर पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा ना सर वो। नहीं, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू सॉलिड एंड इट्स आयंस ओनली। अगर हम लोग PbI2 को PbI2 एक्वस मान के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ी निकाले हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये जो निकाला गया है, ये तो 100% डिसोसिएटेड मानकर निकाला गया है ना, जिसमें दिस इनटू दिस का स्क्वायर ही है, इज ऑलवेज दिस। तो भले ही ये कुछ बच गया, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, एक सोल्यूशन में 0.01 मोलर Ba2 प्लस और 0.01 मोलर Ag प्लस। सॉलिड K2CrO4 इज एडेड स्लोली। तो K2CrO4 का ऐड करना मतलब CrO4 2- का कंसंट्रेशन धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हो। दोनों सॉलिड का KSP दिया हुआ है। Ag2CrO4 का दे रखा है 1.1 into 10 to the power minus 12 और BaCrO4 का दे रखा है 2.2 into 10 to the power minus 10। Which ion will precipitate first? तो ये जो सवाल मैंने दे दिया वो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन किसके रेस्पेक्ट में सोल्यूशन सैचुरेट होगा? पहले
तो हम लोग निकालेंगे भाई, किसको क्रोमेट आयन कम चाहिए, कौन से सॉलिड के लिए क्रोमेट आयन कम चाहिए सैचुरेशन के लिए। तो Ag2CrO4 कैसे ब्रेक करेगा, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। थोड़ा अलर्ट रहना इस सब में, Ba2 प्लस CrO4 2 माइनस। इसका KsP Ag प्लस का स्क्वायर इंटू क्रोमेट आयन 2.2 इंटू 10⁻⁻10 Ba2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू क्रोमेट आयन। सॉल्व करो, सॉल्व करो। सीधे गैस नहीं कर सकते, दोनों का सैचुरेशन के लिए क्रोमेट आयन का वैल्यू निकालेंगे और जो कम आएगा वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा, क्योंकि हम लोग क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं सोल्यूशन में। Which ion will precipitate first? Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेशन के लिए कम कितना क्रोमेट आयन चाहिए, वो यहां से निकलेगा। तो हम लोग यहां से निकालेंगे क्रोमेट आयन रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन with respect to Ag2CrO4, that will be equal to 1.1 into 10⁻⁻12 divided by Ag plus का स्क्वायर। Ag plus का स्क्वायर माने 10⁻⁻4 हो गया, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁸ मोलर की रिक्वायरमेंट। और BaCrO4 के सैचुरेशन के लिए कितना क्रोमेट आयन चाहिए, 2.2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.01, 2.2 इंटू 10⁻⁸ मोलर। कम कहां रिक्वायरमेंट है, दोनों सॉलिड के रिस्पेक्ट में सैचुरेशन के लिए क्रोमेट आयन कितना कितना जरूरत है निकाल लिए। कौन सा, -10, कहां पे 1.1 डिवाइड बाई 4 आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट आदमी हो तुम। यहाँ 2Ag लिखा है तो यहाँ पे हम 2 इंटू 0.01 लिखेंगे क्या। अरे जितना Ag प्लस है वो Ag प्लस यहाँ बिठाएंगे ना यार। Ag प्लस का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर, कम रिक्वायरमेंट यहां है। देयरफॉर Ag2CrO4 विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। तो अब हम लोग क्या बोल दिए, ये Ag प्लस जो है वो फर्स्ट आयन है, जो पहले प्रेसिपिटेट किया फर्स्ट आयन। Ba2 प्लस बोलेंगे सेकेंड आयन। तो पहला बिट तो आंसर हो गया, विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, Ag प्लस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। अब दूसरा बिट सवाल का कह रहा है कि when the second starts precipitating, what will be the concentration of the first ion? तो देखो, एक बार Ag प्लस का प्रेसिपिटेशन अगर शुरू हो गया तो ये इक्विलिब्रियम Ag2CrO4 के साथ हर वक्त मेंटेन्ड है, सॉलिड भी है और आयन भी है। ये इक्विलिब्रियम तो हर वक्त मेंटेन्ड रहेगा। सॉल्यूशन हर वक्त Ag2CrO4 के हिसाब से सैचुरेटेड रहेगा, है ना। तो पूछ रहा है कि जब ये दूसरा प्रेसिपिटेशन शुरू हुआ तो ये Ag प्लस कितना बचा है। तो दूसरा प्रेसिपिटेशन कब शुरू होगा, जब क्रोमेट आयन इतना हो जाए। जब क्रोमेट आयन सॉल्यूशन में इतना होगा तो ही दूसरा वाला प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। और अगर क्रोमेट आयन इतना है तो Ag प्लस कितना है, तो ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल कर। 1.1 इंटू 10⁻⁻12 विल बी इक्वल टू, हमसे पूछा जा रहा है नया Ag प्लस का कंसंट्रेशन और क्रोमेट का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कितना हो चुका है, 2.2 इंटू 10⁻⁸ देयरफॉर
Ag plus का concentration will be 1.1 into 10 to the power minus 12 divided by 2.2 into 10 to the power minus 8 whole to the power 1 by 2. इतना मोलर Ag प्लस प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में जब BaCrO4 जस्ट प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। क्लियर? पांचवा, फिफ्थ कौन सा सवाल है? हाँ, कि मेरे पास बीकर में एक सॉल्यूशन है, H2S का एक्वस सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड विथ रेस्पेक्ट टू H2S। तो H2S कितना होगा? 0.1 मोलर H2S का एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो जरूर H2S ब्रेक करेगा H प्लस में, HS माइनस में और सल्फाइड आयन में। कहने का मतलब इसके अंदर सल्फाइड आयन भी मौजूद है। ठीक, सवाल कह रहा है कि अगर हम इसमें Ag प्लस डालें तो बताओ कि इसमें कितना मैक्सिमम Ag प्लस हम ले जा सकते हैं ताकि Ag2S का प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट किया जा सके। जस्ट प्रिवेंट करना या जस्ट स्टार्ट करना कौन सा कंडीशन होता है? सैचुरेटेड है कि नहीं? तो Ag2S के हिसाब से पहले तो हम रिएक्शन वो लिखेंगे प्रोसेस, इट विल ब्रेक एज 2Ag प्लस प्लस H2 माइनस। KSP दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 49 KSP दे रखा है। तो नो डाउट इस सोल्यूशन में सल्फाइड आयन कुछ मौजूद है। अब इसमें Ag प्लस हम कितना मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं ताकि Ag2S का प्रेसिपिटेशन जस्ट रोका जा सके या जस्ट प्रिवेंट किया जा सके, जस्ट शुरू किया जा सके। कैसे करेंगे? तो कब तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा? जब KSP Ag प्लस का स्क्वायर और सल्फाइड आयन के बराबर ना हो जाए। सल्फाइड तो पहले से ही मौजूद है, हम धीरे धीरे Ag प्लस बढ़ा रहे हैं, तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि इन दोनों का प्रोडक्ट KSP तक बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हुआ रुक जाओ, वही मैक्सिमम Ag प्लस कंसंट्रेशन है। बताए थे ना? सॉलिड लेकर शेक करके सॉलिड को हटा लेना इज सेम एज कि उसमें हम लोग Ag प्लस मिलाएंगे, तब तक मिलाएंगे जब तक कि KSP के बराबर हो जाए। सब बताया था ना पिछले क्लास में यार। तो सीधा सीधा यहां पर आंसर है Ag प्लस विल बी इक्वल टू रूट ओवर KSP अपॉन, यही आंसर है। निकाल उसमें सल्फाइड आयन कितना है, आयनिक इक्विलिब्रियम, डाइप्रोटिक एसिड K1 K2 दिया हुआ है, सल्फाइड बताओ कितना है उसमें? 10 टू द पावर माइनस 14 K2 के बराबर ही होता है, ऐसा हम लोग कर चुके हैं। H2S breaks as H plus plus of HS minus. HS minus will break as H plus plus of S2 minus. K1 K2 0.1 minus X, X and X, X minus Y, Y and Y, ये भी X minus Y, X plus Y,
इतना तो लिखते ही है, फॉर्मेलिटी निभाना है। उसके बाद सीधे K2 इज वेरी वेरी मच लेस देन K1, एक 10 to the power -7, एक 10 to the power -14, देयरफॉर y विल बी वेरी वेरी मच लेस देन x। x के सामने y को हटा देंगे, चाहे प्लस दिख रहा हो या माइनस दिख रहा हो। अब अगर ऐसा कर दिए तो तुम खुद देखो K2 किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स, x कट गया, K2 y के बराबर आ जाएगा। और y क्या है, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन ही है, जो कि K2 के बराबर 10 to the power -14। देयरफॉर आंसर विल बी √1.6 इंटू 10 to the power -49 डिवाइड बाई 10 to the power -14। यही आंसर है। इतना Ag+ आप ले सकते हो सोल्यूशन में, ताकि प्रेसिपिटेशन इज जस्ट अवॉइडेड। क्लियर एवरीवन? 6th, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? 6th, Mg2+ और अमोनिया का सोल्यूशन है 0.05, 0.05। एक बीकर में एक सोल्यूशन है जिसमें Mg2+ है 0.05 मोलर, और इसमें अमोनिया है 0.05 मोलर। MgOH का होल ट्वाइस का Ksp गिवन होगा 9 इंटू 10 to the power -12, 9 इंटू 10 to the power -12। और ये वैल्यू किसके लिए है, जब MgOH होल ट्वाइस Mg2+ और 2OH- में ब्रेक करे। Kb अमोनिया का दे रखा है 1.8 इंटू 10 to the power -5। सवाल पूछ रहा है, इसमें हम लोग क्या मिला रहे, NH4Cl। कितना कॉन्सेंट्रेशन NH4Cl का किया जाए इसके अंदर, ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना हो, ताकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना हो। आप लोगों को ये पता ही है कि एक्वस अमोनिया इज इक्विवेलेंट टू NH4OH। एक्वस अमोनिया इज इक्विवेलेंट टू NH4OH। इनडायरेक्टली NH4OH का Kb दिया है। खैर, Mg2+ तो फिक्स है ना। अगर हम इसका Ksp का एक्सप्रेशन देखें तो Mg2+ इंटू OH- का स्क्वायर आ रहा है। Mg2+ तो फिक्स है, तो कितने OH तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा वो तो निकाला जा सकता है। कितने OH- के कंसंट्रेशन तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। Mg2+ पहले से ही मौजूद है, हो सकता है हम OH- धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, क्योंकि इसका Ksp तो इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो हम तो सीधे सीधे निकाल लेंगे कितने OH- तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। OH- विल बी इक्वल टू √ Ksp अपॉन Mg2+ का कंसंट्रेशन √ 9 इंटू 10 to the power -12 डिवाइडेड बाई 0.05। इतने OH मैक्सिमम तक प्रेसिपिटेशन। अब सोचो, NH4Cl अंदर जो हम लोग मिला रहे हैं, उसके आते ही बीकर में क्या तैयार हो जाएगा, बफर। वेरी गुड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही है और उसमें NH4Cl हम मिला रहे हैं। इनडायरेक्टली वी आर क्रिएटिंग अ बफर, और बफर का पीएच क्या होता है, कांस्टेंट। कैसा बफर बन रहा, बेसिक बफर। तो हम चाहेंगे कि ये एक ऐसा बफर बने जिसमें OH- इतना हो, क्योंकि इतना होने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट होगा। OH पता चल गया, रिक्वायर्ड
For just preventing POH required, let it is alpha, निकल ही जाएगा. For just preventing, POH will be equal to pKb plus log to the base 10 salt का concentration upon base का concentration. POH निकाल चुके हो अल्फा, pKb आएगा 4.74, 1.8 into 10 to the power minus 5 का प्लस log to the base 10. NH4Cl का कंसंट्रेशन अपॉन 0.05 सॉल्व करके अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन निकाल देंगे सोल्यूशन का. उतना कंसंट्रेशन अमोनियम क्लोराइड का लिया जाएगा. सातवां, सेवेंथ क्या कह रहे? कैलकुलेट द सॉल्विटी ऑफ CaF2 इन अ बफर. यही है ना? बफर ऑफ pH इज इक्वल टू 3 गिवन KSP 5.3 into 10 to the power minus 9, K for HF 6.7 into 10 to the power minus 4, CaF2 solid, Ca2 plus 2F minus, इसका solubility बताना बफर में of pH is equal to 3. KSP और K दे रखा है HF का. कौन सा कैटेगरी का ये प्रॉब्लम आ गया? सॉल्युबिलिटी इन बफर. इसका क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका तो आयन में OH माइनस या H प्लस है ही नहीं है. F माइनस का F माइनस में HF कहां से है? HF कहा लिए हम लोग? HF थोड़ी लिए हैं शुरू में. अगर HF का K दे रखा है, इससे यह साबित होता है कि HF एक वीक एसिड है और जिसका पेरेंट वीक उसका आयन भी वीक, और इसे साबित होता है कि F माइनस जो है वीक आयन है और F माइनस का हम लोग हाइड्रोलिसिस लेंगे. यह सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस का सवाल है. ध्यान रखना, जब भी के भी गिवन हो तो थोड़ा डाउट करना, सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस. क्लियर? कहने का मतलब CaF2 Ca2 प्लस और 2F माइनस में ब्रेक किया, लेकिन F माइनस चूंकि वीक है, F माइनस का हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, बनाएगा HF प्लस OH माइनस. सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस. ये सेटिस्फाई कर रहा है KSP, ये सेटिस्फाई कर रहा है KH, और KH किसके बराबर होता है? KW अपॉन K के बराबर होता है. हम लोग डिराइव किए थे ना, BA सॉलिड, B2A, BA2 सब तो किए हुए हैं. कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग? मास बैलेंस. मास बैलेंस. लेट द सॉल्युबिलिटी इज S, वी विल गेट S 2S, लेकिन ये 2S नहीं रह जाएगा क्योंकि इसका आगे भी रिएक्शन हो रहा है. समझ में आ रहा? F माइनस जो मैक्सिमम मिला विल बी इक्वल टू F माइनस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम प्लस HF फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम. कितना F माइनस मिला मैक्सिमम? 2S. दैट विल बी इक्वल टू F माइनस प्लस HF. यहां से निकाल KW by K HF इंटू
OH माइनस अपॉन F माइनस। ये OH माइनस जैसे ही यहां नीचे जाएगा KW बाई OH हो जाएगा, KW बाई OH इज H प्लस। तो H प्लस इंटू F माइनस, HF निकालो यहां से, आएगा H प्लस इंटू F माइनस डिवाइडेड बाई K। F माइनस कॉमन लेके निकाल लो एक्सप्रेशन। F माइनस जो आएगा 2s अपॉन 1 प्लस H प्लस अपॉन K KSP Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू F माइनस का कंसंट्रेशन स्क्वायर। KSP दिया हुआ है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल टू Ca2 प्लस कितना है S, और F माइनस कितना निकाले 2s अपॉन 1 प्लस H प्लस बाई K का होल स्क्वायर। 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 4s क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस pH कितना था बफर का 3, तो H प्लस कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 3 कांस्टेंट। H प्लस के बदले क्या बिठा दिए 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई K कितना दे रखा है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके S निकाल लेंगे एंड दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉलिड इन अ बफर इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा? आखिरी सवाल 8th, एक वाटर के अंदर AgCl का सॉलिड लिए, इसमें हम अमोनिया कितना मिलाएं ताकि AgCl डिसॉल्व कर जाए 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल डिसॉल्व कर जाए, लेकिन वॉल्यूम तो 1 लीटर था ना, 0.1 मोल पर लीटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। KSP दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 9 और KF दे रखा है 10 टू द पावर प्लस 8। ये आखिरी केस था, सॉल्युबिलिटी इंक्लूडिंग या सॉल्युबिलिटी कंसिडरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कैसे बताए थे इसको डील करना? काय का वाई मानते वाई मानते, ठीक है। AgCl सॉलिड Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, लेकिन Ag प्लस साथ ही साथ क्या कर रहा है, Ag प्लस 2NH3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये KSP मेंटेन करेगा, ये KF मेंटेन करेगा। लेकिन चूंकि KF का वैल्यू 10 टू द पावर 8 गिवन है, इससे यह साबित हो रहा है कि ये रिएक्शन इररिवर्सिबल है। इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट 0 हो जाएगा। कौन होगा 0? अमोनिया तो हम अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं, अमोनिया 0 थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है? Ag प्लस 0 होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे जब हम आके ऑब्जर्व करें तो पता चले कि सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल है AgCl का।
यही कह रहा ना इनडायरेक्टली कि AgCl 0.1 मोल डिसॉल्व हो चुका होना चाहिए, तो अमोनिया कितना लिया जाए। लेट अमोनिया वॉज मेंटेन्ड C मोलर, हमें नहीं पता कितना, यही C निकालना है। समझ में आ रहा? लेट द सॉल्युबिलिटी इज S, S एंड S, ये भी S था, लेकिन ये S पूरा रिएक्ट कर गया, 0 हो गया लगभग। अगर S रिएक्ट किया है तो यहां से 2S गया और यहां क्या आया, S आया। लेकिन ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये कुछ वैल्यू Y है। सवाल में दिया हुआ है कि S इज 0.1, क्लियर? S इज 0.1 मोल पर लीटर, 0.1, 0.2, 0.1 बिठा दी। Y और C अननोन है, कोशिश करेंगे C निकालने का। समझ में आ रहा है? KSP Y into 0.1, therefore Y will be equal to 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8, KF 10 to the power 8, 0.1 divided by 10 to the power minus 8 multiplied by C minus 0.2 का स्क्वायर। ये जैसे इधर गया हो गया 1, C माइनस 0.2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.1, C माइनस 0.2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 0.1। हाउ मच? रूट ऑफ 0.1 कितना होता है? 2.3 0.3 के आसपास है, लगभग 0.316। अरे बाप रे, 3 डिजिट तक। तो C विल बी इक्वल टू 0. इतना मेंटेन करना पड़ेगा अमोनिया, तो AgCl 0.1 मोल पर लीटर डिसॉल्व कर जाएगा। क्लियर है? इतने सवाल जो हम लोग डिस्कस किए, इस डिस्कशन के हेल्प से आपका ट्यूटोरियल शीट सारे सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान लगा के इन सारे सवालों को समझो और ट्यूटोरियल शीट से प्रैक्टिस करो। इस टॉपिक का आखिरी सब टॉपिक इंडिकेटर्स, हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़े थे बहुत पहले, पहला टॉपिक रेडॉक्स टाइट्रेशन। और रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट अक्सर लगाते थे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। ये कब लगाया जाता है? जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो, ना तो A बचा और ना ही B बचा। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट कब लगाया जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट पे। जैसे मान लो A प्लस B रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट दे रहा है ना? ना तो A बचा ना ही B बचा, तो हम बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, और उसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? अब देखो, जैसे मान लो एक HCl का हम एक्वस सोल्यूशन लिए। HCl का एक्वस सोल्यूशन क्या है? कलरलेस सोल्यूशन ही तो होता है। और उसमें हम धीरे धीरे पिपेट या ब्यूरेट के मदद से इसमें क्या डाल रहे हैं? NaOH। तो NaOH भी होता है कलरलेस। थोड़ा सा फील लाने के लिए, दोनों कलरलेस है, धीरे धीरे हम डाल रहे हैं। साथ में रिएक्शन हो गया इन दोनों के बीच में, NaCl प्लस वाटर बनेगा। NaCl प्लस वाटर भी है कलरलेस। हमें समझ में कैसे आएगा कि
कब HCl खत्म हुआ, कब खत्म नहीं हुआ। तो इस क्या कि देखो, अगर आप एक्स्ट्रा NaOH डाल के अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगाओगे तो गलत, कम डाल के भी अगर आप मिली इक्विवेलेंट लगाओगे तभी गलत। आपका मिली इक्विवेलेंट का रूल कब सही है? जब इस बीकर के अंदर ना तो HCl बचे और ना ही बिल्कुल इक्विवेलेंस पॉइंट पे प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैन बी अप्लाइड, एल्स नहीं लगा सकते, गलत आंसर आ जाएगा। जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाओगे। तो वो चीज पता करने के लिए कि किस वक्त HCl और NaOH दोनों के दोनों फिनिश हो चुके हैं बीकर में, उस चीज को, उस पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेट्स व्हेन द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट बाय चेंजिंग इट्स कलर। जैसे ही लास्ट ड्रॉप गया और सारा HCl को कंज्यूम कर दिया, उसी लास्ट ड्रॉप जैसे ही हम डालेंगे इसके अंदर इंडिकेटर अगर आप लिए हो तो इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा, और कलर चेंज हुआ तो ये ऐड करना हम बंद कर देंगे। नोट कर लेंगे कितना वॉल्यूम डाले, कितना वॉल्यूम था, प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट लगा के हम आंसर निकालेंगे। तो इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेट्स व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट बाय चेंजिंग इट्स कलर। नोट करो, लिखो कुछ। इंडिकेटर बेसिकली indicates when the reaction is 100% complete. Indicator basically indicates when the reaction is 100% complete. Indicator basically indicates when the reaction is 100% complete by changing its color. By changing its color. All indicator possess two colors. All indicator possess टू कलर्स। हर इंडिकेटर के पास दो कलर होता है। ऑल इंडिकेटर पॉजेस टू कलर। सोचने वाली बात है, एक ही चीज का दो कलर कैसे हो सकता? ऑल इंडिकेटर पॉजेस टू कलर्स। ऑल इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसेस। ऑल इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसेस। ऑल इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसेस। हम लोग एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। सारे इंडिकेटर या तो वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस ही होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे एसिड का, वही ट्रीटमेंट यहां पर भी करेंगे। हर इंडिकेटर के पास अपना दो कलर होता है। पहले एक कलर मेंटेन किया होता है सोल्यूशन में, मान ले कलरलेस भी एक कलर हो गया। जैसे ही आखिरी ड्रॉप आया NaCl का जिसमें HCl पूरा कंज्यूम हो गया, उसी वक्त वो कलर चेंज कर दिया पिंक में। कलर चेंज हुआ कलरलेस से पिंक, तुरंत हम लोग रुक जाएंगे टाइट्रेशन करना और प्रिंसिपल ऑफ मिली इक्विवेलेंट हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक उसी पॉइंट पे जब पूरा HCl खत्म हो जाए, वहीं इंडिकेटर को कलर चेंज करने का मतलब है। पहले ही चेंज मार दिया, नॉट सूटेड। पहले ही पिंक कर दिया, दो चार बूंद डालेंगे नहीं पिंक हो गया, वो इंडिकेटर क्या सूटेड? अभी भी HCl प्रेजेंट ही है अंदर। रिएक्शन खत्म हो गया लेकिन कलर चेंज मारा ही नहीं, वो भी इंडिकेटर नहीं। तो कौन सा इंडिकेटर मेरे टाइट्रेशन के लिए बेस्ट सूटेड है? जो ठीक उसी वक्त कलर चेंज मारे जिस वक्त ये HCl कंप्लीटली फिनिश या खत्म होता है, उस पॉइंट पे कलर चेंज करना। समझ में आ रहा है? हम लोगों के पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अलग अलग टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए अलग अलग इंडिकेटर सिलेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि एक टाइट्रेशन करने के लिए 4-5 इंडिकेटर बेस्ट सूटेड है, उनको यूज करके आप टाइट्रेशन कर सकते हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सिर्फ एक ही सूटेड इंडिकेटर है, तो वो चुनना भी एक तरीका है, एक टेक्निक है। वही टेक्निक हम लोग सीख रहे बेसिकली। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ यही सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए हम कौन सा इंडिकेटर को सिलेक्ट करें। क्या फिनोल्फिलीन हर टाइट्रेशन में काम कर जाएगा? नहीं, एक पर्टिकुलर टाइप का टाइट्रेशन में ही काम करता है। काम करना मैंने क्या? जिस वक्त A और B दोनों खत्म हुआ वहां कलर चेंज करना, तब इंडिकेटर का मतलब है। पहले या बाद में चेंज करना है, इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं हुआ।
The indicator should change the color at the end point, equivalence point of the reaction. Then only it has meaning. Otherwise, it does not have any meaning. ठीक है, तो selection of indicator for a particular titration process. हर इंडिकेटर या तो वीक एसिड या वीक बेस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एचपीएच कहलाता है फिनोप्थिलीन, शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का. ऐसा होता तो ये बेंजीन रिंग से बड़ा बड़ा एरोमेटिक में हम लोग पढ़ेंगे. फिनोप्थिलीन एक वीक एसिड है. अगर आप बीकर में इंडिकेटर को ले रहे हो तो वो भी सोल्यूशन में ही आ रहा है. वो सोल्यूशन में आ रहा है तो वीक एसिड की तरह ही बिहेव करेगा. वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये भी ब्रेक करेगा H+ और pH- में. मिथाइल ऑरेंज इज अ बेसिक इंडिकेटर. इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं MEOH. मिथाइल ऑरेंज भी ब्रेक करेगा Me++ ऑफ OH-. हर इंडिकेटर के पास दो कलर होता है. कलर दो इसलिए होता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्म का कलर होता है और एक आयनाइज्ड फॉर्म का कलर होता है. जैसे फिनोप्थिलीन का मॉलिक्यूल का कलर कलरलेस होता है, लेकिन pH- आयन का कलर पिंक होता है. मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज येलो होता, लेकिन Me+ का कलर रेड होता. अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम भी यहां स्टैब्लिश्ड है कि नहीं, तो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा है. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म ज्यादा हो गया तो वो कलरलेस मेंटेन करके रखेगा, लेकिन जब जिस मोमेंट पे ये pH- ज्यादा हो जाए वहां पे कलर चेंज हो जाएगा पिंक में पूरे सोल्यूशन का. बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का क्वांटिटी वेरी क्यों करेगा? क्योंकि टाइट्रेशन के दौरान H+ वेरी करता है. समझ में आ रहा? हम लोग बफर में ऐसे एक सवाल किए थे ना, अलग 100 ml डाले तो कितना pH, 200 ml डाले तो कितना pH. हर जगह अलग अलग pH आ रहा है यार. तो किसी भी टाइट्रेशन के दौरान pH वेरीज, H+ वेरीज, OH- वेरीज, therefore their relative quantity also varies, therefore the color of the indicator can change. समझ में आ रहा है बात? चूंकि टाइट्रेशन में H+ वेरी करता है, OH- वेरी करता है, इसलिए इंडिकेटर का कलर चेंज होता है. ठीक. अब हर इंडिकेटर का हमारे पास कम से कम एक एक्सप्रेशन, हमारे को एक इंफॉर्मेशन जरूर रहता है कि कौन सा कितना गुना हो जाए तो कलर पिंक होगा और क्या कंडीशन में कलर कलरलेस होगा. उससे पहले अगर ये इंडिकेटर वीक एसिड है तो इसका Ka होगा, इसका Kb होगा, लेकिन हम लोग इंडिकेटर में क्या कहते हैं, Kb हटाकर उसका नाम दे देते हैं Ki. Kb नहीं बोल के उसको हम लोग Ki बोलते. Ki इज नथिंग बट इंडिकेटर कांस्टेंट. जैसे पहले वाले का Ki किसके बराबर होगा? H+ का कंसंट्रेशन pH- का कंसंट्रेशन अपॉन HPH का कंसंट्रेशन. दूसरे का Ki किसके बराबर होगा? Me+ OH- अपॉन MEOH. ठीक है. अब देख, यहां से अगर हम H+ निकालें तो आएगा Ki इंटू HPH का कंसंट्रेशन अपॉन pH- का कंसंट्रेशन. दोनों तरफ माइनस log टू द बेस 10 ले लो. जैसे ही माइनस log टू द बेस 10 लोगे, pH विल बी इक्वल टू pKi प्लस log टू द बेस 10 pH- का कंसंट्रेशन अपॉन HPH का कंसंट्रेशन. एक एक्सप्रेशन आएगा आपके पास. यहां तक सही है? चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म दोनों का अलग अलग कलर है, हर इंडिकेटर का हमारे पास कम से कम एक इंफॉर्मेशन जरूर रहता है कि अगर pH- का कंसंट्रेशन अपॉन HPH का कंसंट्रेशन अल्फा हो जाए तो कलर P
कौन सा कलर कितना रेशियो पे रहेगा वो इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है। बात समझ में आ रहा है कि अगर pH माइनस अपॉन HPH का रेशियो अगर अल्फा वैल्यू हो जाए तो कलर P एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन में। सिमिलरली अगर इसका रेशियो बीटा हो जाए तो कलर क्या हो जाएगा? Q। सोचो ऐसे, अगर pH माइनस HPH का 10 गुना हो जाए तो pH माइनस का कलर, अगर HPH pH माइनस के 10 गुना हो जाए तो HPH का कलर। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो कौन से कलर के लिए कौन सा रेशियो होना चाहिए वो हमें पहले से ही पता रहता है इंडिकेटर के बारे में। समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में वो वैल्यू रेशियो का बिठा देते। जैसे हमें pH1 मिलेगा pKi प्लस log टू द बेस 10 अल्फा लिख के, और एक और pH का वैल्यू मिलेगा pKi प्लस log टू द बेस 10 बीटा लेके। दो pH के वैल्यू मिलेंगे। pH1 के लिए कलर P है, pH2 के लिए कलर Q है। इसी pH1 से pH2 को बोला जाता है pH रेंज ऑफ इंडिकेटर। हर इंडिकेटर का pH रेंज होता है और यह pH रेंज इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फिनोप्थिलीन, उसके ठीक नीचे लिखा रहेगा 8.3 से 10। मिथाइल ऑरेंज, उसके ठीक नीचे देखना लिखा हुआ रहेगा 3.3 से लेकर 4.4। वो जो लिखा रहता है वो क्या रहता है? pH रेंज। समझ में आ रहा? pH1 या उससे कम कलर Q, pH2 या उससे ज्यादा कलर P, और इधर कलर Q। बीच में क्या कलर? नॉट डिफाइंड, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जिस वक्त फिनोप्थिलीन कलरलेस से पिंक हो रहा होगा वो सडनली पिंक होगा। हमें कलरलेस और पिंक का बीच का इंटरमीडिएट कलर कभी भी नहीं दिखता। तो pH1 या उससे कम कलर P, pH2 या उससे ज्यादा कलर Q। ये pH1 pH2 हम लोग निकालते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। समझ में आ रहा? pH रेंज क्या होता है इंडिकेटर का, समझ में आया? दो pH का वैल्यू मिलेगा आपको, एक pH कलर P के लिए और दूसरा pH कलर Q के लिए। ठीक? इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, अगर ये अल्फा बीटा का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग गैस भी कर लेते हैं। कैसे? एक दूसरे को 10 गुना मानकर, एक दूसरे को 10 गुना मानकर, मतलब pH माइनस अपॉन HPH अगर 10 हुआ तो pH माइनस का कलर। समझ में आ रहा है? 10 गुना मानकर। और अगर pH माइनस अपॉन HPH हुआ 1/10, माने अगर ये 10 गुना हो गया तो HPH का कलर। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक दूसरे को 10 गुना मानते हुए कलर डिफाइन कर देंगे। और इस केस में pH का जो रेंज आएगा, pH का जो रेंज आएगा वो आएगा pKi माइनस 1 से लेकर pKi प्लस 1 तक। देख लॉग में बिठा 10 और 1/10। जब लॉग में 10 और 1/10 बिठाओगे तो pKi प्लस 1 आएगा और pKi। So if nothing is given, then we always assume the pH range of the indicator as pKi minus 1 से pKi plus 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। एक इंफॉर्मेशन हम आपको दी है कि HPH फिनोप्थिलीन का कलर होता है कलरलेस और उसका ये कलर होता है पिंक। अगर फिनोप्थिलीन का pH रेंज 8.3 से लेकर 10 है, 8.3 से लेकर 10 है, तो pH अगर 8.3 से कम हुआ तो बता कौन सा कलर होगा, और pH ग्रेटर देन 10 हुआ तो कौन सा कलर होगा?
पीएच अगर 8.3 से कम है तो कौन सा कलर, और पीएच अगर 10 से बड़ा है तो कौन सा कलर। तो पीएच अगर 8.3 से कम है, पीएच इज लेस, H प्लस इज मोर। इफ H प्लस इज मोर देन pH माइनस विल बी लेस। अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा ना, और ये ज्यादा हो जाएगा। तो 8.3 से कौन सा कलर आएगा, कलरलेस। और अगर pH 10 से बड़ा है, माने pH ज्यादा है, H प्लस कम है, H प्लस कम हो जाने के कारण pH माइनस बढ़ जाएगा, और pH माइनस बढ़ जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।